کو بتائیں راولپنڈی کا تاریخی لیاقت باغ ایک بار پھر زندگی کی رونقیں سمیٹنے کو تیار ہے، جبکہ پی ایچ اے کی جانب سے باغ کی تزئین و آرائش اور اپ گریڈیشن کا کام تیزی سے جاری ہے تاکہ شہریوں کو صحت مند اور پرسکون ماحول فراہم کیا جا سکے۔ ڈی جی پی ایچ اے احمد حسن رانجھا نے لیاقت باغ کا دورہ کیا اور مختلف سیکشنز کا معائنہ کرتے ہوئے جاری کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے پارک کے خد و خال کو مزید بہتر بنانے کے لیے موقع پر ہدایت جاری کی ہیں۔ ڈی جی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق عوام کو اعلیٰ معیار کی تفریحی سہولیت فراہم کرنے کے لیے پی ایچ اے دن رات کوشاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لیاقت باغ کی اپ گریڈیشن مکمل ہونے کے بعد شہریوں کو تفریح اور ورزش اور کھیلوں کی سرگرمیوں کے بہترین مواقع میسر آئیں گے۔ حیدرآباد پریس کلب کے عہدیداروں اور دیگر صحافیوں نے چینل 5 نیوز اور میٹرو 1 نیوز کے اینکر پرسن امتیاز میر کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ اینکر پرسن چینل 5 نیوز اکبر شاہین نے حیدرآباد پریس کلب میں صحافیوں سے بات چیت کی۔ حیدرآباد پریس کلب کے جنرل سیکریٹری حمید الرحمان، حیدرآباد پریس کلب کے جوائنٹ سیکریٹری مجاہد عزیز، ریاست علی، قسیم قریشی، عمران راجپوت، عرفان جکڑو، قاضی شکیل سمیت یاسر قرائی اور دیگر کا کہنا ہے کہ وہ آپ کو سناتے ہیں۔ موجود ہیں حیدرآباد کے پریس کلب میں، اور آپ نے دیکھا کہ ہماری ساری صحافی برادری امتیاز میر صاحب کے ساتھ جو ایک سانحہ پیش آیا، اور وہ اس دنیا سے، اس سانحے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم پوری دنیا کو اور پورے پاکستان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ صحافی برادری متحد ہے، کوئی بھی صحافی ہو پاکستان کا، ہم ساری صحافی برادری ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس امتیاز میر صاحب کے لیے جو صحافی برادری کہنا چاہتی ہے، میں ان کے کمنٹس آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہے جوائنٹ سیکرٹری مجاہد عزیز میرا نام ہے، اور پریس کلب کا جوائنٹ سیکرٹری ہوں۔ اور فی زمانہ یہ کہتے سنتے سمجھتے آئے ہیں کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، اور صحافی کے لیے اگر یہ کہا جائے تو یہ ان پہ زیادہ فٹ ہوتا ہے کہ سچ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض معاملات میں موت۔ تو یہی سلسلہ جو ہے ہمارے جو سینئر صحافی تھے امتیاز میر صاحب کے ساتھ پیش آیا۔ امتیاز میر کا جو قتل ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آزادی صحافت کا قتل ہے، وہ اس ملک کے اس آئین کا قتل ہے جو اس عام آدمی کو یا جرنلسٹ کے تحفظ کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے اس قانون کا قتل ہے۔ وہ ہم جس اس معاشرے میں بات کرتے ہیں جمہوریت کی، اظہار رائے کی آزادی کی، تو وہ اظہار رائے کی آزادی کا قتل ہے، وہ اس جمہوریت کا قتل ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جرنلسٹ وہ ایک سماج کا جو آئینہ ہوتا ہے، وہ اس آئینے میں جو سماج کا آئینہ ہے وہ سماج کو وہ دکھاتا ہے، وہ حکومت کی کرپشن ہو، وہ دوسرے کوئی معاملات ہو، وہ پولیٹیکل کوئی ایشوز ہو، وہ حقیقت بتاتا ہے، وہ سچ بتاتا ہے۔ لیکن اب سندھ کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہے۔ آپ نے دیکھے تواتر سے کتنے صحافی ہمارے قتل ہوئے ہیں، اور وہ صحافی قتل ہوئے ہیں جو پروفیشنلی اپنا جو ہے فرض سر انجام دیتے ہوئے قتل ہوئے۔ یہی امتیاز میر صاحب کے ساتھ بھی ہوا۔ تو میرے خیال میں یہ لمحہ فکریہ ہے گورنمنٹ کے لیے، اور ایون ہم صحافیوں کے لیے بھی، کیونکہ اتنے سارے قوانین پاس ہو جاتے ہیں لیکن وہ قوانین جو ہے ہمیں کہیں بھی پروٹیکشن کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ امتیاز میر صاحب کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور یہ صحافتی برادری کے لیے ایک وہ بڑا دکھ کا لمحہ بھی تھا، اور ہمیں بھی بہت بڑا دکھ ہوا۔ وہ ہم اس کو سنتے تھے، وہ ہمارا ساتھی تھا، صحافی ساتھی تھا۔ یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے، قتل ہوا ہے، وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو جو حکومت ہے ان کو جو قاتل ہے، کون قاتل ہے، ان کو پکڑے، کیفر کردار تک پہنچائے۔ صحافت جو ہے وہ اب ایک بہت ہی مشکل پیشہ بن چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں کرپشن ہوگی اور صحافی اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ٹارگٹ ہوگا۔ حکومتی قوانین ہمیں بہت سی جگہوں پر بالکل لاچار نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتی قوانین پر عمل کرنے والے ادارے خود کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جی ناظرین، ساری صحافی برادری خصوصاً حیدرآباد کا پریس کلب امتیاز میر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور امتیاز میر صاحب کی جو کہ قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہم سب یکجا ہیں اور ایک زبان ہیں۔ امتیاز میر کے خون کا بدلہ انشاءاللہ لیں گے، امتیاز میر کے خون کا بدلہ انشاءاللہ گرفتار کرو، گرفتار کرو، امتیاز میر کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے بعد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ بہت شکریہ۔
कसूर में रात की तारीकी में हुकूमत ने पेट्रोलिय मसनूआती कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। आवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, अब पेट्रोल के नए रेट से महंगाई का ना रुकने वाला सैलाब आएगा। आवाम ने पेट्रोल की नई कीमतों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। मजीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर से। बिल्कुल, वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से रात की तारीकी में एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और इस वक्त महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक बार फिर से पेट्रोल बम गिराया गया है। पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 4 रुपये कुछ पैसे बढ़ाकर इस वक्त 271 रुपये 52 पैसे पेट्रोल का जो नया रेट हो चुका है। और इसी तरह डीजल की जो कीमत है वो भी 4 रुपये कुछ पैसे बढ़ाई गई है, जो नया रेट 279 रुपये 88 पैसे यहाँ पर हो चुका है। और मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इन पेट्रोल मसनूआत की जो बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर। सर, क्या कहेंगे जो है रोज पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं? जी, ये हमें रिलीफ मिलना चाहिए क्योंकि आवाम तो पहले ही इस महंगाई की चक्की में फंसी हुई है। ये पेट्रोल जो रात को बढ़ाया गया है, आवाम को चाहिए था, गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो आवाम को रिलीफ दे, क्योंकि हालात पहले ही इतने ख़राब हैं कि हर बंदा जो ना सफ़ेद पोश बंदा वो इस नौयत में नहीं है कि वो अपना जो ना गुज़र बसर कर सके अच्छे तरीके से। तो हम इसमें ज़ाहिरी बात है, अब पेट्रोल बढ़ा है तो इसमें ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी अफेक्ट पड़ेगा और हमारे जो खाने पीने की अशिया हैं उनके ऊपर भी अफेक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली इनके रेट्स बढ़ेंगे तो खुदारा हुकूमत को चाहिए कि ये जो पेट्रोल का हमारे ऊपर बहरान छोड़ा है इसको ख़त्म करें, तो आवाम को जितना भी हो सके रिलीफ दें। बिल्कुल, आपने यहाँ पर शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हम इस पेट्रोल मसनूआत को बिल्कुल नहीं मानते और हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को जो रिलीफ है, जो आवाम को रिलीफ जो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा और इन पेट्रोल मसनूआत को आवाम जो है वो रिजेक्ट करते हैं। जी, सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से ग्लोब चौक से नेशनल प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें दर्जनों सहाफ़ियों ने शिरकत की। रैली की क़यादत पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी रहनुमा इमदाद फलपोटो, सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ अब्बासी और सखर नेशनल प्रेस क्लब के सेक्रेटरी रशीद रजा ने की। इस मौके पर निसार आशिक हैदरी, शाहिद सुलंगी समेत मुताद्दिद सहाफ़ी शरीक हुए। मुकर्रिरीन का कहना था कि इम्तियाज़ मीर पर दिन दहाड़े गोलियां बरसाई गईं, मगर ताहाल कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। सहाफ़ी रहनुमाओं ने कहा कि यह अफसोसनाक अमर है कि सहाफ़ी खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। दादू में म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी सामने आ गई। शहर में गंदगी के डेरे, गटर नाले उबलना रोज का मामूल बन गए हैं। इस गंदगी की वजह से बहुत सी बीमारियां फैलने लगीं। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अल्लाह खुश्क। देखें, दादू में महकमा बल्दियात के अफसरान की अदम तवज्जो और मुबैना करप्शन के बायस जो है शहरी आबादी वो कचरे के ढेरे में तब्दील हो गई है। दादू शहर के 12 वार्ड है जिनमें शहरी हल्कों की जानिब से यही शिकायत की जा रही है कि म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से जो है ड्रेनेज नालों की सफाई का काम वो नहीं किया गया है, कचरे के ढेरे जमा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट तालिम वाला हाई स्कूल के एक सड़क किनारे पर। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर ये कचरा जो है म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से तकरीबन 5 साल हो गए यहाँ पर जो है फेंका जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कचरा जो है वो उठाया नहीं जा रहा है, जिससे इलाके में जो है बदबू फैल रही है। दादू के शहरी हल्कों का यही कहना है कि म्यूनिसिपल इंतजामिया की माहाना करोड़ों रुपए बजट है, लेकिन वो कहाँ पर खर्च हो रहे हैं। शहरी हल्कों का ये भी कहना है कि हंगामी बुनियाद पर जो है शहर में सफाई सुथराई का अमल शुरू किया जाए, ताकि जो शहर में गंदगी की वजह से मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियाँ और जल्दी अमराज जन्म ले रही है वो ख़त्म हो सके। जी, मीरपुर खास और गर्दनवा में तेज मूसलाधार बारिश से कई रोज से जारी गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के सबब बिजली का निजाम मफलूज हो गया। मीरपुर खास शहर और इसकी दीगर तहसीलों जुड्डो, नोकोट, डिग्री कोट, गुलाम मोहम्मद में भी बारिश के दौरान बिजली गिरने के वाकयात पेश आए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल तेज मूसलाधार बारिशों की पेशन गोई की गई थी। बारिश के दौरान मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने अमले के साथ शहर भर में नकासियाब के कामों के मुआयने के लिए दौरा किया और अपनी मौजूदगी में नकासियाब के काम सरअंजाम दिए। मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने अमले को हिदायत जारी की कि फौरी तौर पर शहर भर की तमाम शाहराहों से पानी की निकासी का अमल मुकम्मल किया जाए।
दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल तो कम हुई, मगर जिन इलाकों और खेतों में पानी खड़ा है वहाँ अब बीमारियों का सैलाब सर उठाने लगा है। डेंगू, मलेरिया और पेट के अमराज में इजाफा होने से मुतासरीन बाबा बुल्ले शाह अस्पताल का रुख कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी इस वक्त बाबा बुल्ले शाह अस्पताल में मौजूद हैं। जी, बाबा बुल्ले शाह के हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदे। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज सैलाब की अगर सूरत हाल की अगर बात की जाए तो पानी में वाजिया कमी के बाद जो है पानी तो इस वक्त जो है वो तमाम इलाकों से और जो गांव है उनमें से उतर चुका है, लेकिन पानी उतरने के बाद जो ना तबाही के मनाजर जो है ना वो दिखाई देते हैं। उनके साथ साथ जो है पानी उतरने के बाद जो वबाई अमराज फूटे हैं उसकी वजह से जल्दी बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं। उनके साथ साथ जो गैस्ट्रो के मरीज हैं उनकी तादाद में भी जो है ना इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कसूर बाबा बुल्ले शाह हॉस्पिटल में इस वक्त मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है MS बाबा बुल्ले शाह हॉस्पिटल, उनसे मजीद बात भी करते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा डॉक्टर साहब के सैलाब मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है तो इस पे क्या कहेंगे आप? जी जैसे कि भी आपने बताया कि पानी तो उतर गया है, कि अब इसकी वजह से जो पेट के जो इमराज हैं जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह जो है इसके फैलने का बहुत शदीद खतरा है, और बल्कि कुछ हद तक फैलना शुरू हो गया है। हमारे पास पेट के इमराज के तकरीबन रोजाना 100 के करीब पेशेंट्स आ रहे हैं। डेंगू मलेरिया अभी तक कोई एज सच कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन फीवर बढ़ गया, पेशेंट्स में बुखार बढ़ गया। तो हमारे पास उसकी लेबॉर्ट्री के सारे सामान वगैरह मौजूद है, उनकी टेस्टिंग वगैरह का, और हमने मलेरिया डेंगू इनके अलग वार्ड्स बना दिए हैं जहाँ पे पेशेंट को आइसोलेशन में रखा जाएगा, उनको मच्छरदानियाँ जो होती हैं उसके अंदर रखा जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मिल के हम सब इस आफत से हमने फाइट करना है। जी, जैसे आपने MS बाबा बुल्ले शाह हॉस्पिटल की बात सुनी, उनका यही कहना था वबाई अमराज फैलने से डेंगू और जो जल्दी अमराज है उनमें इजाफा हो चुका है, और रोजाना की जो है 100 से जायद मरीज जो है इस वक्त हॉस्पिटल में जो है ना आ रहे हैं, उनका इलाज जारी है और तमाम जो इंतजामात हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी, बाहिम्मत खातून जो कि कोहे पेमा और एथलीट हैं, मुख्तलिफ ममालिक में पहाड़ सर करने के साथ साथ मैराथन रेस में भी हिस्सा लेती हैं, जिनकी अपने मुल्क और शहर से मोहब्बत में मिसाल है। सादकाबाद में अपने रिश्तेदारों और अजीजों से मिलने आई हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बख्तू से। जी बख्तू। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद कैमरा ऑफिस में, और मेरे साथ मौजूद है मैडम थुरैया, जिनका तल्लक UK से है। वो 35 साल से UK में रहायश पजीर है, और जो छुट्टियों के 15 दिन होते हैं उसी में वो सादिकाबाद आती हैं और अपने जो यहाँ के इनके रिश्तेदार और दोस्तों उनसे मिलती हैं। इनका जो है मैराथन और हाइकिंग का भी शौक है, मजीद इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिकाबाद से हूँ और UK में रहते मुझे 35 साल हो गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है सादिकाबाद आना। बचपन से ही मुझे खेल में हिस्सा लेने का बहुत शौक था। सादिकाबाद ओल्ड स्कूल से मैं पढ़ी हूँ और मुझे वॉलीबॉल खेलने का शौक था। बैडमिंटन में मैंने खेला है। जो वॉलीबॉल है वो मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे रिप्रेजेंट किया है इस्लामिया यूनिवर्सिटी को। मुझे हाइकिंग का शौक भी है और मैराथन रनिंग का शौक भी है। तो जो मैराथन है वो 42 किलोमीटर होती है और हाफ मैराथन जो होती है वो 22 किलोमीटर होती है। तो उसके मैंने तकरीबन 5-6 मैंने उसमें मैराथन्स में हिस्सा लिया है पिछले 2 सालों में। और इसके साथ साथ मुझे जो शौक है वो हाइकिंग का पैदा हो गया था। हाइकिंग में मैंने UK की 3 हाईएस्ट माउंटेन जो है वो मैंने ट्रैक की हैं। और उसके बाद फिर मुझे शौक हुआ, मैंने अफ्रीका एशिया का भी करने का मेरा प्रोग्राम है। 7 कॉन्टिनेंट्स में मैंने 7 हाईएस्ट पीक्स करने का मेरा प्रोग्राम है। जी बिल्कुल, ये थे मैडम सुरैया अहमद, जिनका कहना था कि उनको बचपन से जो है स्पोर्ट का शौक था और उन्होंने बहुत से जो है माउंटेन जो है वहाँ पर पहाड़ों पर चढ़ी हैं। उन्होंने बहुत से मुकाबले जीते हैं और उन्होंने बहुत से मुल्कों का भी दौरा किया है और इस वक्त जो है वो स्पोर्ट में है। उन्होंने जो है सादिकाबाद में भी उसका उनका शौक है और जो जब सादिकाबाद आती हैं तो सादिकाबाद उनके अपने रिश्तेदारों से और दोस्तों से जब मिलती है तो उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है। जी
खानेवाल में तजावुजात के खिलाफ पैरा फोर्स का ऑपरेशन जारी है। SDO ताहिर अब्बास कच्ची फील्ड में मुतहरक हैं। कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी गईं, जबकि कई दुकानदारों पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि अवामी रास्तों पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तफसीलात ब्यूरो चीफ आसिफ कुरैशी से जानते हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, खानेवाल में नाजायज तजावुजात के खिलाफ पैरा फोर्स का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन की निगरानी SDO ताहिर अब्बास कीची साहब कर रहे हैं, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि वज़ीर आला साहबा ने पैरा फोर्स इसलिए क्रिएट की थी कि जो हमारे नाजायज़ तजावुजात हैं शहरों में या देहातों में, इसको ख़त्म किया जाए। उनकी हदायत के मुताबिक पैरा फोर्स 24 घंटे आपके शहर में आपको काम करती हुई नज़र आती है। और इसी ज़िम्रे में हम देखते हैं कि जो आपका ये संगला वाला चौक है, जो आपका कचहरी चौक है, जो आपका अकबर बाज़ार है, ये क्योंकि हमारे मेन बाज़ार हैं, इसलिए मेरी टीम का फोकस हम इधर ज़्यादा होता है। इसके अलावा हम देहातों में भी जो भी नाजायज़ तजावुज़ात हम देखते हैं, सरकारी अमलाक जो हैं किसी के नाजायज़ कब्ज़े में है, उसका भी हम साथ ही तदारक कर रहे हैं। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल, पैरा फोर्स के SDO ताहिर अब्बास कीची गई कहना यही था कि नाजायज तजावुजात के खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जी। पतोकी के नवाही इलाके हालांकि 28 साला खातून निजी क्लिनिक में दौरान डिलीवरी बच्चे समेत जा बहाक हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर महकमा सेहत की टीमें फौरी तौर पर हाला पहुंच गईं। खावंद के मुताबिक डॉक्टर की संगीन गफलत के बायस माँ और बच्चा दोनों जिंदगी की बाजी हार गए। मुतासरा शहरी ने इल्जाम आयद किया कि निजी अस्पताल का अमला मौत का सबब बनने के बावजूद जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। मुतालिका हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। CO हेल्थ कसूर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ने मुतासरा खानदान से हाला में मुलाकात की और कहा कि हुकूमत पंजाब मुतासरीन को हर सूरत इंसाफ फराहम करेगी। रुख करेंगे जंग का, जहां वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सैलाब से मुतासर इलाकों में फ्लड सर्वे का अमल तेजी से जारी है। जिला जंग के 303 मौजूदात में सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का मुकम्मल डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। सर्वे टीमों ने अब तक 2304 घरों और 4920 एकड़ सैलाबज़दा फसलों के नुकसानात की तफसीलात मुरतब कर ली हैं। 151 सर्वे टीमें फील्ड में सरगर्म अमल हैं। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर और असिस्टेंट कमिश्नर भी मौके पर जाकर सर्वे टीमों की कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं ताकि मुतासर खानदानों को जल्द अज जल्द इमदाद फराहम की जा सके। गुजरावाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में पैरा फोर्स की शानदार फॉर्मल कमांड सलामी परेड का इनेकाद किया गया। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के नौजवानों ने मार्च पास्ट किया और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को सलामी पेश की। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला ने पैरा फोर्स परेड का मुआयना किया। पैरा फोर्स ने नज़्मो ज़ब्त, महारत और जज्बे से परेड का मुजाहिरा किया। इस मौके पर कौमी तराना भी पेश किया गया। गिरा फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तजावुज़ात का खात्मा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अव्वलीन तरजीह है। पैरा फोर्स गिरा फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तजावुज़ात के खिलाफ बेहतरीन काम कर रही है। हम एक टीम है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से मुकम्मल ताउन किया जाए। पैरा फोर्स से बेहतरीन कारकर्दगी की तवक्को है। नौजवान मेहनत, लगन और जाफिशानी से काम करें। पैरा फोर्स अवाम के लिए मौसर और काबिल एतमाद इदारा बनकर उभरेगा। डिप्टी कमिश्नर ने सैलाब में पैरा फोर्स की खिदमात को भी सराहा। जराइम पेश अफराद के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। थाना शोरकोट कैंट पुलिस ने कत्ल के संगीन मुकदमे में मतलूब 3 खतरनाक इश्तिहारी मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शोरकोट से आबिद हुसैन। पुलिस का फैसला कुन एक्शन। थाना शोरकोट कैंट पुलिस ने कत्ल के संगीन मुकदमे में मतलूब 3 खतरनाक इश्तिहारी मुजरमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में नदीम, वकास और कमर शामिल हैं। तीनों एक कैटेगरी के मुजरिम इश्तिहारी हैं। DPO झंग बिलाल इफ्तिखार कियानी ने कहा कि इश्तिहारी मुजरमान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन पूरी कुव्वत के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ आबिद हुसैन, 5 न्यूज़ शोरकोट।
कमीर शरीफ में साफ सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। मकामी इंतजामिया की सरगर्मियां सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद दिखाई देती हैं, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। मजीद सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज मलिक अबरार खोकर से। जी अबरार। देखिए बिल्कुल गांव गांव शहर शहर साफ सुथरा पंजाब करने वाले के जो दावे हैं वो कमीर शरीफ में धरे धरे रह गए। मैं आपको बताऊं कि कमीर शरीफ में जगह जगह पर जो है गंदगी के ढेर है। मैं आपको बताऊं कि कमीर शरीफ मकामी इंतजामिया की जो कारकर्दगी है वो सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद है। अगर मेरे कैमरे में आपको दिखा सके तो मैं आपको बताऊं कि ये देखें, ये जगह जगह पर ये गंद किस तरह के जो है वो ढेर लगे हुए हैं। इस टाइम मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे इस हवाले से वो क्या कहते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, जिस तरह दावे और वादे किए गए थे, जिस तरह इन लोगों ने ये टीमें भर्ती की है, इतना सारा अमला भर्ती किया है, लेकिन उसके मुताबिक जो है वो सफाई सुथराई बिल्कुल नाकिस है। तो मैं ये अपील भी करूंगा कि आप लोग जिस तरह आपने अमला माशाल्लाह भर्ती किया और दावे किए हैं, उसके मुताबिक फिर आवाम को वाकई सफाई सुथराई नजर आनी चाहिए कि खुद आवाम बोले कि वाकई जो सफाई है वो 100% हो रही है। आज जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का भी यही कहना था कि अमली तौर पर इंतजामिया को सफाई सुथराई वाला अमल जो है वो मुकम्मल करना चाहिए। मैं जहाँ पे मौजूद, मैं आपको बताऊं कि ये एक सरकारी स्कूल की ये दीवार है और मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ इस जगह पर नहीं, पूरे शहर में मुख्तलिफ महलों में मुख्तलिफ जगहों पर इसी तरह से कूड़ा करकट जो है वो ढेर लगे हुए हैं, जो मुख्तलिफ बीमारियों का भी बायस बन रहे हैं। जी। दरिया सतलुज का सैलाब अपनी तबाहकारियों की एक दिलखराश दास्तान छोड़ गया। इंतजामिया के रिलीफ कैंप खत्म, हुकूमती इमदाद भी सिमट गई है, मगर फलाही तंजीमों की हमदर्दियाँ और खदमात आज भी मुतासरीन के साथ हैं। सैलाब मुतासरीन जहाँ उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वहीं हुकूमती इदारों से मदद की अपील भी कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की रिपोर्ट देखते हैं। दरियाए सतलुज की तबाहकारियां जहां खेत खलियानों को उजाड़ गईं, दर्जनों देहातों को वीरान कर गईं, वहीं सैलाब मुतासरीन को जिंदगी की बुनियादी सहूलतों से भी महरूम कर गईं। इन मुश्किल हालात में हुकूमती रिलीफ कैंप खत्म हो चुके, मगर इंसानियत का दर्द रखने वाले अफराद के साथ साथ अंजुम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पहले दिन से आज तक मुतासरा खानदानों के शाना बशाना खड़ी है। रोजाना हजारों मुतासरीन के लिए पका पकाया खाना इनके घरों की दहलीज तक पहुँचाया जा रहा है। अंजुम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पहले दिन से जितने हमारे सैलाब से मुतासरीन गांव हैं, उन सब के लिए खाना, 1000 बंदे का राशन, कपड़े और जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है, इधर डोर टू डोर गांव में जाके उनके लॉन्च के ऊपर उनको मुहैया कर रही है। अभी भी जितने हमारे सारे मुतासरीन बहन भाई परेशान हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, इनको अभी भी चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे मैं इधर आ रही हूँ अंजुम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वैसे मैं अपने अदारों से, अपनी हुकूमत से भी अपील करती हूँ वो भी आएँ और इनको खुदारा देखें। अब जबकि मौसम सरमा करीब है, मुतासरीन के लिए खाने के साथ साथ बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़ों का भी इंतजाम किया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन जिनके घर पानी बहा ले गया, वो खुले आसमान तले कब्रिस्तान में बैठे हैं और इमदादी सामान मिलने पर शुक्रिया अदा करते हैं और हुकूमत से भी अपील कर रहे हैं कि वो इस कड़े वक्त में इनका साथ दे। सानू लंगर पानी दे रही मेरे कोल मौजूदा, सानू जी मच्छरदानियां चाहिए ने, गुलेफ जुला चाहिए ते सानू ठंड बहुत लगदी ते मस्ते के आंदे रहन आले आ। साडे घर बर्बाद हो गए, जाके वेख लो डिग पए ने, पैलियां बर्बादी लै गई, फसल सारे तबाह हो गए ने। लोकी आपदे घरां विच बह गए ते असीं इत्थे रोलदे फिरने निक्के निक्के बच्चे लेके। सैलाब के जख्म शायद बरसों में भी न भर सकें, मगर फलाही इदारों की ये कोशिशें मुतासरीन के लिए उम्मीद की एक किरण जरूर साबित हो रही हैं। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज कसूर। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मजदूरों की तनख्वाहों और चाइल्ड लेबर के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। महकमा लेबर वेलफेयर मजदूर की तनख्वाह 40,000 रुपए पर अमल दरामद करवाने के लिए कोशा है। रवा माह के दौरान 160 से जायद मुख्तलिफ इदाराजात की चेकिंग की गई। खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर को 35,000 रुपए जुर्माना और 102 चालान अदालतों में भिजवाए गए हैं। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर के खिलाफ 5 FIRs का इंदराज भी करवाया गया है। जिले में नवा माह के दौरान बॉन्डेड लेबर का कोई केस मंजर आम पर नहीं आया। तमाम महकमाजात बॉन्डेड लेबर पर सख्त एक्शन लें और राइज करता मजदूरों पर अमल दरामदी यकीनी बनाएं। DC ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर ने कहा कि चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए अमली इकदाम किए जाएं। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए जिले की मार्केटों और बाजारों की सतह तक सर्विलेंस को बढ़ाया जाए और मजदूरों को कम उजरत ना देने वालों को कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मजीद बताया गया कि सनतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। हिफाजती इकदामात ना कराने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील करने की हिदायत भी दी गई।
मनशियात फ्री पंजाब मुहिम के तहत पाकपतन पुलिस ने गुज़िश्ता माह में 100 से ज़ायद मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्ज़े से 81 किलोग्राम चर्स, 1 किलो हेरोइन समेत मनशियात की भारी खेप बरामद कर ली गई। तफसीलात तारिक सज्जाद चिश्ती की रिपोर्ट में जानिए। पाकपतन पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद चंदड़ का कहना है कि पुलिस ने गुज़िश्ता माह के दौरान 100 से ज़ायद मनशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की डायरेक्शन और विजन के मुताबिक पंजाब को मंशियात से पाक करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये पाकपतन में मंशियात का सिंगल भी कोई आप इंसिडेंट या कोई स्मगलर नहीं देखेंगे। पुलिस की कार्रवाइयों के दौरान मंशियात फरोशों के कब्जे से 81 किलोग्राम चर्स, 1 किलो से जायद आइस, 1 किलो हीरोइन, 1226 लीटर शराब और 8 चालू भट्टियां भी बरामद की गई। पाकपतन पुलिस ने इस माह मंशियात फरोशों के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है और 102 मुकदमात दर्ज किए हैं और 102 मुकदमात के मुलज़मों को गिरफ्तार भी किया है, उनसे मंशियात बरामद भी किया है और उनको जेल भी भेजा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक पाकपतन पुलिस नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। सहाफ़ी और एंकर पर्सन चैनल 5 न्यूज़ इम्तियाज़ मीर पर कातलाना हमले और शहादत पर सरगोदा की सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। सरगोदा प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ती तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज में कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और करार वाक़ई सज़ा का मुतालबा किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सैयद अशर नवेद से। जी अशर, अपडेट कीजिएगा। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन चैनल 5 न्यूज़ इम्तियाज़ मीर की शहादत पर सरगोदा की सहाफ़ी बरादरी भी गम से मामूर है और उनका मुतालबा है कि सिंध हुकूमत ये जो आज़ादी इजहार पर कदगन है, इसको ये जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं और सहाफ़ी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से वाबस्ता मीडिया नुमाइंदगान मुसलसल इन जो है वो समाज दुश्मन अनासर के हमलों की ज़द में आते हैं, उन पर पाबंदी लगाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर प्रेस क्लब अब्दुल हन्नान चौधरी। आइए इस हवाले से उनसे दरियाफ्त करते हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। सहाफ़ियों के साथ इस तरह होना मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ये इक़्तिदार के वानों में बैठने वाले लोग वर्कर सहाफ़ियों के मसाइल से बिल्कुल नाआशना है। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इम्तियाज़ मीर जैसे एंकर पर्सन और सहाफ़ी का इस तरह कत्ले आम जो है वो सिर्फ एक सहाफ़ी का कत्ले आम नहीं, ये हर सहाफ़ी का कत्ले आम है और इस कत्ल पे जो है हम खामोश नहीं बैठेंगे। इस शहादत पे हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। सरगोदा प्रेस क्लब और उसके तमाम कारकुनान, सरगोदा के तमाम सहाफ़ी, सरगोदा के तमाम कैमरामैन, फोटोग्राफर्स, हम इस शहीद की फैमिली के साथ हैं और हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि अगर सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सकते तो इन मसनद इक़्तिदार को छोड़ दें। आप इस काबिल नहीं हैं। अगर आज़ादी इजहार की पासदारी आप न कर सकते, न करा सकते, तो आपके इन हुकूमतों का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और इसके कातिलों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। जी, आपने सदर प्रेस क्लब की बात को सुना। हम इस वक्त सरगोदा प्रेस क्लब के बाहर हैं और सरगोदा प्रेस क्लब के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, एडिटर कौंसल सब जो है सहाफ़ी वो एहतजाज कर रहे हैं और उनका मुतालबा है कि इम्तियाज़ मीर के कातिलों को फिल फोर सज़ा देकर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी खबर शामिल करेंगे आरिफ वाला से, जहां दरिया सतलुज सैलाब ज़दा इलाकों में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर इंतजामिया की जानिब से नाक़िसात और नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए सर्वे टीमें तश्कील भी दे दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने दीगर महकमा जात के हमरा बाकायदा सर्वे का आगाज़ कर दिया है। सर्वे टीमों में महकमा लाइव स्टॉक, महकमा ज़राअत, पटवारी और रेवेन्यू अमला शामिल है। इंतजाम का कहना है कि सैलाब ज़दा इलाकों में मकानात, फसलों और मवेशियों के नुकसान का जायज़ा लिया जाएगा और रिपोर्ट बनाई जाएगी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
आपको बताएं चिश्तियाँ के गिरदोनवाह में चलने वाले ईंटों के भट्टे इलाके की फ़ज़ा को शदीद मुतासर कर रहे हैं। इन भट्टों से निकलने वाला गाढ़ा धुआं ना सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा कर रहा है बल्कि सांस, दमा, खांसी और आँखों की बीमारियों में भी तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है। शहरियों के मुताबिक रोज़ाना सुबह शाम धुएँ के बादल पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेते हैं। इससे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद कलीम अफजल चौधरी की इस रिपोर्ट में। चिश्तियाँ के गिरदोनवाह में चलने वाले ईंटों के भट्टे इलाके की फ़ज़ा को शदीद मुतासर कर रहे हैं। इन भट्टों से निकलने वाला गाढ़ा धुआं न सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा कर रहा है बल्कि सांस, दमा, खांसी और आंखों की बीमारियों में भी बड़ी तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। शहरियों के मुताबिक रोजाना सुबह शाम धुएं के बादल पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेते हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही है। जी ਅਸੀਂ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਠੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਠਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਠੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧੂਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਠਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਠੇ ਨੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਈ जाए। चिश्तिया में ईंटों के भट्टों में से फैलने वाली फ़ज़ाई आलूदगी अवाम के लिए संगीन सेहत के मसाइल पैदा कर रही है, लेकिन इंतजामिया की खामोशी अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ा रही है। शहरियों का कहना है कि अगर बर वक्त इकदाम ना किया गया तो आने वाले दिनों में यह आलूदगी मज़ीद खतरनाक शक्ल अख्तियार कर लेगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कलीम अफजल चौधरी, 5 न्यूज़ चिश्तिया। सेवन शरीफ और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के बाइस हद नजर चंद गज रह गई। ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं सेवन शरीफ से हमारे नुमाइंदे वजीर अहमद सोलंकी से। जी वजीर अहमद। जी बिल्कुल, सेवन शहर और सेवन के गिरदोनवाह में वक्फन पिछले 1 घंटे से जो है बारिश का बरसने का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेवन के मेन चौराहे जहाज चौक पर, जो कि बारिश के बरसने से जो है तालाबी मंजर पेश कर रहा है। तूफानी बारिश के बायस जो है सेवन की सड़कें, गलियां और चौराहे तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सेवन का जो गिरज स्टेशन है उसके भी कई फीडर जो है ट्रिप कर गए हैं। गर्मी का जो है जोर टूट चुका है। सेवन का मौसम जो है वो बिल्कुल खुशगवार हो चुका है। जी वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। एक ऐसी जगह जहां सूरज की किरणें ताजा हवाएं इस्तकबाल करें, जहां ख्याल को तकमील और ख्वाब को ताबीर मिल गई। SB बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश कर रहे हैं 12 रौनक आबादी के दरमियान द लॉर्ड्स विस्टा, जदीद तरीन आसाइशात के साथ दौरे हाजिर का एक मुनफरिद रिहायत। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि औलिया कराम के शहर मुल्तान में भी सेफ सिटी अथॉरिटी का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। शहर की मरकजी, दाखिली और खारजी रास्तों पर कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं और साथ ही ई चलान के अमल का भी आगाज कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान मलिक वजाहत से। जी वजाहत। जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ सेफ सिटी मुल्तान में, जहाँ पर हुकूमत पंजाब की जानिब से सेफ सिटी मनसूबों का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं SP नसरुल्लाह वड़ाई साहब। हम मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी अच्छा सर, ये जो सेफ सिटी के जो फ़वाइद हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इसके क्या फ़वाइद हैं, इससे जराइम में क्या किस हद तक कमी वाक़ई होगी। सेफ सिटी दौर जदीद की आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और इस मॉडर्न दौर में जिस तरह आप समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत बहुत सारी चीज़ें ट्रेस की जा रही हैं, इसी तरह कैमरा जात की मदद से और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए
अब पुलिसिंग भी उसी पैटर्न पे की जा रही है, ताकि अब हम सर्विलेंस इसके ज़रिए कर रहे हैं। इसके थ्रू ई चालान का आगाज़ हो चुका है सेफ सिटी में, और इसके अलावा आप देखें कि 24/7 हमारी यहाँ पर वर्किंग हो रही है। इस पर हम क्राइम जितना भी सर्विलेंस पूरे सिटी की सर्विलेंस जारी है, और लोगों की सेफ्टी के लिए और उनको जिस किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो वो भी उनको प्रोवाइड की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पैनिक बटन के हवाले से बताना चाहूँगा कि शहर में पैनिक बटन भी इंस्टॉल हो चुके हैं। अगर किसी शहरी को फौरी पुलिस एक्सेस चाहिए, राब्ता चाहिए, तो वो पैनिक बटन के ज़रिए जो ही बटन दबाएगा तो हमारे साथ वो राब्ते में आ जाएगा। मुल्तान के शहरी हुकूमत के सेफ सिटी मंसूबे से जहां खुश नज़र आते हैं, वहीं पर जो पुलिस के अफसरान हैं उनका कहना है कि सेफ सिटी मंसूबे से एक तो जराइम में कमी आएगी और शहरियों के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। जी। पाकपतन में चेयरपर्सन इंस्पेक्शन डायरेक्टोरेट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउ के अराजी रिकॉर्ड सेनेटर का अचानक दौरा किया गया। उनका कहना था कि शफाफ बर वक्त मौसर सर्विसेज फराहम करना हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। चेयरपर्सन ने फ़र्द, इंतकालात और दीगर खदमात में किसी भी ताख़ीर को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ काउंटर्स का भी मुआयना किया है और शहरियों से बराह रास्त उनके मसाइल और इस हवाले से गुफ्तगू की। शहरियों की शिकायत पर मौके पर ही मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी की गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने अमले को दयानतदारी और खुश इखलाकी से फराइज की अदायगी की हिदायत भी की है। ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए शहरियों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। रावलपिंडी के लाइसेंसिंग सेंटर्स पर शहरियों का बेपनाह रश देखा जा रहा है। ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में 24 घंटे लाइसेंसिंग सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि जिला भर में 15 सेंटर शहरियों को ये सहूलत दे रहे हैं। इंचार्ज लाइसेंसिंग के मुताबिक गोजर खान, किलर सैयदा और टेक्सला में ड्राइविंग टेस्ट का सिलसिला जारी है। मोबाइल खिदमत वैन के जरिए दूर दराज के शहरियों को भी सहूलत फराहम की जा रही है। शहरियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस इशुएंस मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन पोर्टल पर भी लाइसेंसिंग सर्विस मयसर है, ताकि रश से बचा जा सके। जड्डो में सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर के कत्ल के खिलाफ सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब के सामने तजाजी मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी की है। शहीद सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर की इसाल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। इस मौके पर जड्डो प्रेस क्लब के सदर खालिद सदफ आराई, अब्दुल रशीद कायम खानी और दीगर ने कहा कि सिंध की सहाफ़त पर एक बार फिर काला दान तुलू हुआ है। सच और हक का रोशन सितारा इम्तियाज़ मीर को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उन्होंने कहा ये दिल दहला देने वाला वाक़या सिर्फ एक सहाफ़ी का नहीं बल्कि पूरी सहाफ़ी बरादरी का कत्ल है। इम्तियाज़ मीर को उनकी पेशेवराना ईमानदारी, बेबाक सच्चाई और अवामी आवाज़ बनने की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इससे पहले भी सिंध के कई सहाफ़ियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और इस हवाले से सहाफ़ियों ने मुतालबा किया है कि हम इस बात को भी जोर दे रहे हैं कि गैर जानिबदार और आला सतही कमीशन कायम करके शफाफ तहकीकात की जाए और कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। बराह रास्त ली चलेंगे लाहौर